I able to share? हाँ. Namaste and welcome to this monthly meeting of Vishwa Upasana Parivar. As you know, there was a conference in Surat, Gujarat, February 12th to 15th on consciousness. And as you know, consciousness, as we see it from Vedic perspective, is called self-realization. And that is achievable only if you silence your mind, and that is what is yoga Chittavritti Nirodha is all about. So two of our members presented their research papers, Anilji and Ronakji. So today, as we customarily meet first Monday of the month, Ronakji will make a presentation, and next month it will be from Anilji. So I invite Ronak ji, please. Yeah. धन्यवाद आचार्य जी. Namaste. Namaste to everyone. I'm just sharing a presentation. Yeah. So last month, we, under the guidance of Acharya ji, me and Anil ji presented two papers. The first paper was a paper on Patanjali Upasana, which was presented by Anil ji. And the second paper was Reviving Sandhya Upasana and Panch Mahayajna. Title was this, and it was presented by me. So in presentation, while presenting the paper to the Surat conference, we displayed a presentation over there. So today, what I will do, I will take you through that presentation. And after that presentation, basically this presentation will give you an overview of what was our idea behind this paper and how this paper tries to address the topic. And after that, I will take you through our paper, research paper, very broadly in a guest way, so that you understand what we have written and what was our basically ideas behind the research and the various things that we have covered. Okay. So because there are multiple audience, what I will do, everything which is written is already in English. So I'll speak more in Hindi. I think that way it will cater to both the audience so they can read it in English. And at the same time, I will speak little bit in Hindi and English, both mixed language, so that people of all the part of the regions can able to, relate with the presentation. So as displayed over here, our topic was Vedic integral vision for the future of humanity. And before I start on this, I would like to start with one of the important outlook कि हमारे भारत में हम कैसे देखते हैं कि जीवन जीने के लिए हमें क्या important चीज़ों की आवश्यकता है. What is the most important things to live within the context of Indian lives, as well as we can extrapolate it to the lives we live around the world also. So without any second thought, देयर इज सब ये चीज जो है एक दबे मन से हर जना एक्सेप्ट करता है भारत में, कि भारत में अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है तो तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए. पहला है पैसा, पावर. और अगर पैसा और पावर दोनों नहीं है तो भारत के बाहर कोई नौकरी या बिजनेस. एंड ये जो बात है कि हमारे जीवन तभी अच्छा बनेगा when we have money, when we have some community, then only our life will be successful. ये ये एक बहुत ही important outlook देता है life को. And many people live with this dream to achieve these things.
और जाहिर सी बात है कि ये सपना जो है कभी सबका पूरा नहीं होता. नॉट एवरीवन इज एबल टू सक्सीड ऑन दीज ड्रीम्स, एंड many people live with grudges at the end of the day. एंड इससे होता ये है कि हमारा जो जीवन जीने का आउटलुक है वो रौनक, पूरे आपका, समाज में एक रौनक, ऐसा क्लियरिटी बनता है नहीं आ कि रही। हम बस काम रौ- चलो तरीके से ही जीवन जीते हैं. ओके. रौनक, आपका एंड इंटरनेट कनेक्शन एक स्टेबल हीन नहीं है। भावना, डिससेटिस्फेक्शन समाज में व्याप्त ये रहती है. आवाज क्लियर नहीं आ रही रौनक नहीं जी। आ रही, तो स्क्रीन इसलिए भी अटक अगर गई। हम बात करें फ्यूचर, अभी मेरी वॉइस क्लियर है? जी हाँ पहले भी थी लेकिन बीच में खराब हो गई थी हाँ, बिल्कुल। स्क्रीन स्टक स्टक थी आपकी, रुक गई थी, स्टिल हो गई थी। ओके ओके, मे बी समाउ शायद कुछ नेटवर्क इशू हो गया होगा. या, so I'll begin with the presentation. So as we start with what are present challenges in our lives. So we have categorized the challenges into three parts. हमारे जो challenges हैं तीन हैं. Declining social trust, like this is we observe in our daily lives that our relations in the society are continuously been facing this challenge. We are not able to trust easily to others. इसका एक एग्जाम्पल हम हमेशा अपने सेशन में भी देते हैं कि व्हेन आई वाज अ किड, आई कुड इजीली गो आउट इन द मार्केट इवन एट द एज ऑफ 5 or 6 years, and nobody at the home was worried that कि something would happen to me. But in today's time, even in the tier 3 cities of India, it is not very much a comforting situation that people would leave their kids uh, on their own to go to the market and take things, because uh, now people are not expected to take care of each other in that way that they used to do in the past. Okay, so this is the declining social trust, and this problem is not just limited to India. It is applicable to entire humanity, as we see. The second problem जो हमें दिखती है वो है strengthening grip of psychological influences through media. ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है बिकॉज आज के समय में हमारा जो एक्सपोजर है मीडिया का वो इतना ज़्यादा है, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू न्यूज़ चैनल्स, थ्रू टीवी, थ्रू सिनेमा, थ्रू नाउअडेज थ्रू एआई इंटरेक्शन, और इसके अलावा फिर हमारे मैगजीन्स, बिलबोर्ड्स, एवरीथिंग काउंट्स एज अ मीडिया. सो आप अपने लाइफ के एस्पिरेशंस भी मीडिया के थ्रू ही शेप करते हैं. आप काम पे जाते हैं, आप सोचते हैं मैं वैकेशन बनाने कहाँ जाऊंगा, मैं अपना नेक्स्ट इवेंट कैसे प्लान करूंगा. एवरीथिंग इज एक्चुअली बीइंग शेप्ड हाउ यू सी मीडिया. बेसिकली आपके आसपास लोग कैसे सोशल मीडिया के थ्रू अपने फंक्शंस कर रहे हैं, कैसे वो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, कैसे वो वेकेशन पे जा रहे हैं. Ultimately everything is being passed on. Basically world is exchanging with each other through media. So again, this is a good platform, but at the same time, a lot of psychological influences and tactics are used. And this is actually a problem in well-being for humanity. और तीसरी जो हमारी प्रॉब्लम है विच इज द persistent anxiety about ability to cope with the rapid changes in life. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हम सबको पता है, चैट जीपीटी और बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे पेनिट्रेट कर रहा है लाइफ में. एवरी 2 years डाउन द लाइन वी सी कि अब नेक्स्ट क्या होगा, एंड इट बिकम्स मोर concerning, especially for the youth. For example, 10 years back, or sorry, 15 years back, when I cleared my CA in 2011, I was very confident ki what will be my future work path, okay, workflow or career flow. Similarly, 10 years back, behind my, let's say around 2000, anyone who has graduated or done a PhD or done a good IIT engineering in degree, they would have been very comfortable about their future career path. But going forward in next 3 to 4 years, a person who is doing a good
graduation, good degree, even in terms of CA, even in terms of IIT engineering, they would not be very sure how their future career path will shape. Okay, so this is the uncertainty with which most of the today's generation is now pressured to live with. And this also applies to us also, हम सब पे भी apply करता है, because कहीं ना कहीं हमारा जो social interaction है वो भी change हो जाता है, हमारे जो साथ में रहने वाले लोग हैं उनकी expectation फटाफट change हो जाती है. And similarly एंजाइटी ये भी है, डेमोग्राफिक एंजाइटी भी है, वो हम सबको देखने में आती है. इवन इन यूरोप, अमेरिका, इंडिया, हर जगह पे जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं वो भी एक एंजाइटी को बढ़ाता है. सो अल्टीमेटली दीज ऑल चैलेंजेस जो हैं, ये सब चैलेंजेस हमारे उन्हीं तीन चीज़ों को बढ़ाते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें, हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर को एग्रीगेट कर लें, या कैसे भी करके किसी सेफ हेवन में शिफ्ट हो जाएं, सो दैट आवर लाइफ रिमेन्स गुड एंड हैप्पी. ओके, बट by very nature, not every person in this world will be able to, accumulate money, power, and transfer himself to a safe haven. Okay, because आज के कुछ साल पहले, when we used to think that America is a safe haven, now we uncover the Epstein files. Okay, so actually, in real terms, there is nothing called safe haven. Maybe you may feel that I am in good place. Your future generation may have a risk to be included in the files like Epstein. Okay, so ultimately, we have to see a Vedic vision ki how Vedic culture shaped the life of India for thousands of years. Okay, so we highlighted this modern paradox कि आज के समय में science and education and governance have seen unprecedented growth. Okay, immense technological development हमने किया है. Governance में we have highly modernized governance structure in terms of politics, in terms of city management and everything. बट स्टिल जो एथिकल कंफ्यूजन हम लोग आज फेस करते हैं, साइकोलॉजिकल फटीग है हम सबके बीच में कि अब करें तो क्या करें, कैसे किसी चीज को अच्छा करें. ओके, सो दैट इज स्टिल नॉट बीइंग एड्रेस्ड. सो ये चैलेंजेस कम नहीं हो रहे हैं डिस्पाइट बीइंग वेरी गुड एट डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस. Even in Indian context, if we see a lot of dharma jagran work, which is called moral education and dharmic initiatives, these all are also falling short, right? When I say falling short, it means कि लोग अपना एनर्जी बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, लेट्स से उपनिषद पढ़ने में, बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं कथाओं के वाचन करने में, स्पिरिचुअल टूरिज्म करने में, बट स्टिल ऑन द ग्राउंड रियलिटी यही है कि दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट ईच अदर, राइट. जो प्रॉब्लम्स हमने तीन चैलेंजेस रखे, वो चैलेंजेस पे कहीं कोई सुधार हो नहीं रहा है. So this indicates that we are overlooking a fundamental dimension of human development. And when we come to this fundamental dimension, Vedic diagnosis is very important. Vedas clearly say that our life is structured into three disciplines: Jnana, Karma, and Upasana. And when we look at the modern focus and modern intensity of our efforts, it primarily lies into Jnana and Karma space. We have developed best of the technology, we have developed best of the governance structure. See, these all things lies in the Jnana and Karma. We have also developed a lot of knowledge quotient in terms of well-being also, okay, what needs to be eaten, what should be avoided, how we need to do exercise, how each and every move in the exercise affects us. Okay, so everything is being tracked now. So everything falls in the Jnana and Karma. So this shows that there is a third discipline which is neglected, and that's what our paper actually focus upon, which is called Upasana. So, and we will also focus upon the civilization system which is built around this Upasana, कि कैसे उपासना का जो सिस्टम है वो पंच महायज्ञ इसको इंटीग्रेट करता है हमारी लाइफ में, राइट. नेक्स्ट हमने बताया कि उपासना क्या है, बिकॉज उपासना एक ऐसा शब्द है जो हाईली मिस इंटरप्रेटेड है और मिसअंडरस्टूड है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. इसे हम अधिकतर रिचुअल्स या पूजा पद्धति से रिलेट करते हैं. जब भी हम उपासना की बात करते हैं, सीधा मन में यही बात आती है कि कोई पूजा की बात हो रही है या कोई किसी वर्शिप की बात हो रही है. लेकिन उपासना का जो मीनिंग है, दिस टर्म गिव्स वेरी क्लियर मीनिंग विच इज उप एंड आसन. यानी कि उप का मतलब है प्रॉक्सिमिटी, नियर, एंड आसन का मतलब है टू बी सीटेड, यानी कि पास बैठना.
Now, when we club this etymology of this word with philosophy of Vedas and Vedic scriptures, we find that इसका meaning है inner proximity to ईश्वर and cosmic intelligence. आप इसे ईश्वर कहें या cosmic intelligence कहें, दोनों फॉर्म में ये मीनिंग क्लियरली आता है कि उपासना का अर्थ क्या है, ईश्वर के समीप बैठना. एंड इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट है वो है स्टिलनेस ऑफ चित्त. बिकॉज अगेन जो वैदिक आइडिया है ईश्वर का, वो एक चेतन तत्व है और हम भी एक चेतन तत्व हैं. बेसिकली वी सेल्फ is also a conscious being and Ishwar is also a conscious being, and we can only connect through our when our chitta is disconnected from the world, from the Atma basically. So prerequisite is stillness of chitta, and this is a non-translatable term, and that's why for a English speaking audience who directly does not relate to this Sanskrit term, we also proposed a temporary a closed descriptor term which is called inner proximance. So upasana can be understood as inner proximance, basically proximity to the cosmic intelligence from inside by inducing the stillness of chitta. Okay, now coming to how Vedic civilization actually viewed the life. So Indian civilization, as compared to any other civilization of the world, did not begin with any empires. Okay, it didn't begin with any institutions also, है ना. हम किसी कोई राज्य या कोई ऐसा एक बड़ा सा एक राजा नहीं था जिसने इसको शुरू किया. ये शुरू हुआ एक वैदिक विजन के साथ में, और जिसका विजन में जो केंद्र में थे वो हाउस होल्डर्स थे, गृहस्थ लोग थे. ओके, और इसके विजन में ये भी था कि हम लोग सस्टेनेबली अपनी लाइफ को जिए. विड्रॉल इसका एक सेंट्रल पॉइंट नहीं था, राइट. वैदिक सिविलाइजेशन का, जैसे कि अगर हम बात करें दूसरे वर्ल्ड में जो जितनी भी सिविलाइजेशन है, इनफैक्ट नाउ अगर हम बात करें रिलीजियस ओरिएंटेशन के साथ जो भी सिविलाइजेशन है, उनका जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज आफ्टर बर्थ लाइफ सैल्वेशन, एंड एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेन्यूंसिएशन. So salvation and renunciation was not a part of Indian civilization. In fact, यहाँ पर एक integrated life vision है which is divided into 4 pursuits of life, which is dharma, artha, काम and moksha. And these pursuits are not separate pursuit independently. These are very much intertwined with each other. And इसीलिए यहाँ पर एक गृहस्थ व्यक्ति, basically a householder who is living a day-to-day life, who is having a family, who is having a kids, and going for work, is able to pursue these all 4 goals together, provided he lives by certain standards. Okay, so जब हम हाउस होल्डर्स की बात करते हैं तो होता ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो धर्म को अच्छे से समझे, वो एथिक्स को अपनी लाइफ में अच्छे से समझे. और एथिक्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि उनको एक रिटन स्टेटमेंट है एंड यू नीड टू फॉलो टू द टी, बिकॉज लाइफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड आपको कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, उसके मीनिंग्स और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मूव्स डिसाइड करने होते हैं. अगर हम इंडियन एपिक्स को भी देखेंगे, रामायण महाभारत, आपको ये कॉन्ट्रडिक्शंस इजीली दिखेंगी और आपको पता चलेगा कि धर्म एक्चुअली कितना आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको धर्म को चुनना पड़ता है, समझना पड़ता है. सो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज एक्चुअली वेरी मच फोकस्ड बाय वैदिक विजन. और इसी के लिए बेसिकली उन्होंने पंच महायज्ञ का एक स्ट्रक्चरल सिस्टम डिजाइन किया, सो दैट मोस्ट ऑफ द सोसाइटी डेवलप अ इंट्यूटिव कैपेबिलिटी टू अलाइन देमसेल्फ विद द धर्म. ओके, they are not dependent on constant moral calculation की दिमाग में दिन भर जब भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं कि ये काम मेरा धर्म के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं सत्य बोलूं तो ये नुकसान होगा या नहीं होगा. इसकी जगह हमारे अंदर एक इंट्यूटिव कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम एक सही पाथ, धर्म के अलाइंड पाथ को अपने लाइफ में लेकर के आ सके. ओके, डेफिनेटली टेक्स्ट हैज देयर इम्पोर्टेंस, बट along with text, intuitive capability to keep themselves in the path एंड जो एक इनर स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है टफ टाइम्स में, वो एक इम्पॉर्टेंट है हाउस होल्डर के लिए. अभी जस्ट बिकॉज वी आर कंपेयरिंग दिस विद द हाउस होल्डर, टू रिलेट इट विद अदर सिचुएशन एंड अदर सिविलाइजेशन, वहां पर क्या होता है इस सिचुएशन को डील करने के लिए वी क्रिएट अ सेगमेंटेशन. टिल द टाइम यू आर इन हाउस होल्डर लाइफ, आप एक सिन लाइफ में हो, पापी जीवन में हो, या तो अगर आपको इससे फ्री होना है तो यू हैव टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम इट
and become a renunciation, live a renunciation life. ठीक है, एक सन्यासी का जीवन जियो. It can be seen in very different way. Christian theology में इसे एक पादरी का जीवन या नन का लाइफ कह सकते हैं. In some other sections of the society, this can be seen in any other way. So basically आप इस रेगुलर लाइफ से अलग होके आप अपनी लाइफ को एथिकल बना लो. सो एक ये तरीका है. दूसरा तरीका ये है दूसरे सिविलाइजेशंस में कि आप अपना एक बिलीफ सेट एक सिस्टम पे लेकर के आ जाओ, एंड दैट बिलीफ सेट इज सफिशिएंट इनफ कि वो आपकी डेथ के बाद सेल्वेशन इंश्योर कर देगा. ओके, सो दैट वे दीज अदर outlook of civilizations are different from Indian way. So Indian way says कि no, you have to live very fully and involved in daily life, and to live fully and to live ethically, where everyone is well taken care. We all need to have an intuitive capability to align with the dharma and to align with the cosmic flow of the life. तो इसीलिए पंच महायज्ञ बना, और ये सेंटर्ड है उपासना पर. एंड इसका जो इफेक्ट है वो बहुत सिंपल है. ये है कि ये इनर स्ट्रेंथ डेवलप करेगा. वेन एवर वी डू अ इनर प्रॉक्सिमेंस एक्सरसाइज बाय स्टिलिंग आवर चित्त, so we will develop a clarity, confidence and fearlessness, and automatically it will build a responsibility, attitude of responsibility, which is aligned with knowledge and wisdom. So basically we'll take care of knowledge, we'll take care of wisdom. So हम जो भी हमारा knowledge tradition है उसका ध्यान रखेंगे, हम हमारे elders का ध्यान रखेंगे, and we will also be careful about the vulnerable life. Basically जितने भी पशु पक्षी हैं और रोगी हैं, दरिद्र लोग हैं, तो उनका भी ध्यान रखेंगे. और फिर पांचवा है नेचर, यानी कि प्रकृति जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उसका भी हम ध्यान रखेंगे. बाय डिफॉल्ट ऐसा हमारे अंदर एटीट्यूड रहेगा, बिकॉज दिस इज द आउटकम ऑफ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस थ्रू इनर प्रॉक्सिमेंस, बेसिकली उपासना. और संध्योपासना क्या काम करती है? संध्योपासना इज बेसिकली ऑपरेशनल कोर ऑफ दिस एंटायर पंच महायज्ञ. सो पंच महायज्ञ का जो पहला यज्ञ होता है ब्रह्म यज्ञ, Brahma Yajna is basically operationalized through Sandhyopasana. And historically, if we look at the Indian civilization, it has worked with very much good precision, है ना. And when I say precision, तो precision का मतलब है कि consistently, देखो ये जो पूरा समाज है, हम पिछले 100 सालों में देख रहे हैं कि कितना फास्ट चेंज हुआ है. If you look at last 200, 300 years or even 100 years, entire world has changed very quickly. But suddenly you shift the gaze to the Indian history, you will see despite the change in the human history, there is a continuity of value system right from the time of Sri Ram to even today's life also. So how was this made possible? Because there is a precise technology, precise system which was operationalized through Sandhyopasana. So Sandhyopasana, what it does, it connects us to Swadhyay of Vedas. So basically where जहाँ पे हम क्या करते हैं, वेद मंत्रों के नॉलेज को इम्बाइब करते हैं, एंड देन इट ऑल्सो लीड्स अस टू मेडिटेशन, ओके, इन द फिलोसफिकल फ्रेमवर्क ऑफ सांख्य एंड योग दर्शन, जहाँ पे हम अपने आत्मा को चित्त से अलग करते हैं और उपासना में लीन होते हैं, मेडिटेशन में लीन होते हैं, राइट. थ्रू दिस, इसके थ्रू होता ये है कि हम अपने एक्सपीरियंस को वैदिक नॉलेज के साथ इंटीग्रेट कर पाते हैं, and that's how it works very precisely. इसके स्ट्रक्चरल प्रूफ भी हैं, और जो कुछ भी मैंने कहा, ये ऐसा नहीं है कि ये जो बातें हैं ये सिर्फ एक नॉस्टैल्जिक वे में मैं कर रहा हूँ कि मैं बहुत कनेक्टेड हूँ अपनी सिविलाइजेशन से, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट. देयर इज अ स्ट्रक्चरल प्रूफ अवेलेबल इन आवर ओन सिविलाइजेशन, लाइक इवन इन द वर्क्स ऑफ रामायण, बेसिकली वाल्मीकि रामायण, मनुस्मृति written by Manu, and Mahabharat written by Maharishi Vyas, Chanakya Niti, which is written by Acharya Chanakya from the times of Chandragupta Maurya, and even in latest times in Satyarth Prakash. These are just five textual evidences which I have produced. However, if we want to look at into multiple scriptural, vast scriptural नॉलेज बैंक ऑफ इंडिया, आपको हर जगह पर इसके एविडेंस मिलेंगे, बट ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं जहां पर आपको संध्योपासना के एविडेंस मिलेंगे कि वहां पे जो समाज है वो लगातार इसे कर रहा है. एंड रामायण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब हनुमान जी
सीता माता को लेने जाते हैं, सीता माता की सर्च में जाते हैं लंका में, ही एक्सपेक्ट्स कि वो नदी के किनारे आएंगी और यहाँ पे संध्योपासना करेंगी। ये बात सुनने में बहुत ही ऐसा लगता है कि साधारण सी बात है, लेकिन आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति के साथ एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि वो बंदिश में है, बेसिकली एक बंधन में है, एक तरह से जेल में है, और ये एक्सपेक्टेशन है कि वो संधि उपासना तो करती ही होंगी, राइट। अगर हम आज के अपने जीवन में देखें तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ चलो यार, आप बीमार हो या फिर कहीं पे कोई आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं है तो ठीक है, आपने ये संधि उपासना वगैरह तो नहीं की होगी, लेकिन इन द टाइम्स ऑफ रामायण इट वॉज सो इनग्रेन्ड इन द लाइफ कि आप ये ऐसा सोच भी नहीं पाते हो कि नहीं, वो उस व्यक्ति ने संधि उपासना नहीं करी होगी या वो नहीं करता होगा। तो इट वॉज सो मच पार्ट ऑफ आवर लाइफ. This is very important example. Although this example was not covered in research paper, some other examples we have covered. We have covered कि विश्वामित्र श्री राम को उठाते हैं और कहते हैं कि आपके संध्योपासना का वक्त हो गया है, समय हो गया है संध्या का. Another important example is चाणक्य नीति. So this is very critical. यहाँ पे आचार्य चाणक्य says that he compares a good society with a tree. कि एक अच्छा जो समाज है, जो विद्वानों का समाज होना चाहिए, वो एक वृक्ष के समान है, और वृक्ष में 3 हिस्से होते हैं, उसकी जड़, उसकी शाखाएं और उसके पत्ते. So the roots are basically the Sandhya, and the branches are basically Vedas, and the leaves are basically Dharma. Okay, and you have to do a careful efforts to protect the root. So आपको बहुत यत्न से अपने जड़ों का रक्षण करना पड़ेगा, अदरवाइज शाखाएं और पत्ते बच भी गए और रूट्स नहीं बची तो then everything get lost, right? Even in today's time, in India, there is a season for people tree. पीपल ट्री का जो पतझड़ होता है वो बाद में आता है, नॉर्मल बसंत के बाद में. बेसिकली इट इज द मार्क ऑफ शिफ्ट ऑफ द सीजन फ्रॉम विंटर्स टू समर. तो पीपल के पत्ते सारे झड़ जाते हैं, लेकिन वो पत्ते वापस तभी आते हैं जब उनमें जड़ें अच्छी सी हो. अगर जड़ें ही नहीं होंगी तो आपका घने से घना पीपल का पेड़ भी होता है, वो भी एकदम पत्तों से हीन हो जाता है. And this is very important part because in today's time, if we look at the social efforts, a lot of our efforts are going into protecting leaves and branches, है ना. हम कहाँ कहाँ अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, मे बी शायद हम बाद में जा पाए, लेकिन जहाँ पे भी हम अभी एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप देखेंगे संध्योपासना या उपासना के प्रिजर्वेशन पे तो एफर्ट्स कहाँ हो रहे हैं और कितने हो रहे हैं एज कम्पेयर टू एनी एफर्ट्स ऑफ धर्म जागरण. सो जितना भी है सब लीव्स बचाने में लगे हैं या ब्रांचेस बचाने में ही लगे हैं. लेकिन अगर आचार्य चाणक्य को हम कुछ समझते हैं कि उन्होंने सोसाइटी और सोशियो इकोनॉमिक्स और सिविलाइजेशन का अंडरस्टैंडिंग अच्छे से रखा है, तो देन दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर एंड वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस कि क्यों संध्योपासना एंड उपासना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. So this way this insight is not emotional, it is very much structural. So when root weakens, vitality declines. और संध्योपासना और उपासना का जब ये इंटीग्रेशन होता है पंच महायज्ञ के साथ में, तो आउटकम क्या होते हैं, हमें कैसा समाज देखने को मिलता है. सो आउटकम ये होते हैं कि जो समाज बनता है, इट इज काम, टॉलरेंट, केयरिंग, फिल्ड विथ वाइटलिटी. यानी लोगों के जीवन में उत्साह होता है, लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं. तो अब आप नाउ आप इसको रिलेट कीजिए हमारे चैलेंजेस से. हमारा पहला चैलेंज था सोशल ट्रस्ट का कम होना. तो जहाँ पे काम होंगे, केयरिंग होंगे, आप नेचुरली आपका ये जो चैलेंज है ये डिक्लाइन हो जाएगा, कि आपका ये चैलेंज है एड्रेस होगा कि जब लोग केयरिंग हैं. जैसे कि जब मैंने आपको बताया मैं छोटा था तो लोग केयरिंग थे. अगर कहीं पे रास्ते में अगर मेरे को कुछ हो रहा है तो शॉपकीपर जो नॉलेजेबल है मेरे एफर्ट्स के, मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, ही विल क्विकली इन्फॉर्म माय फैमिली कि अरे देखो आपके बेटे को ये हो गया, आप प्लीज ये मेरे पास सुरक्षित है, आप लेके जाइए. तो अपने आप एक सोसाइटी केयरिंग बन जाती है, वाइटलिटी रहती है. आपने इंडिया के फेस्टिवल्स तो देखे ही हैं. Every now and then we keep a tradition of festival and celebrating the life. So ये जो vitality है, इसका जो origin है basically उपासना के थ्रू ही ये बना है. अभी हम इसको परंपरा के थ्रू निभा रहे हैं अभी, लेकिन ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं. लेकिन इसको जो अगर ओरिजिनलिटी से हम इसको लिंक करेंगे तो ये यहाँ पे आके रुकता है. और फियरलेसनेस ऑफ द सोसाइटी. सो हमारी सोसाइटी हमेशा फियरलेसनेस रही है, मतलब इसमें ये दिखा है ये टैक्टिक
आप चाहे कितने भी इन्वेजन्स के रिकॉर्ड्स उठा के देख लीजिए और उनकी हिस्ट्री को देखिए, यू विल सी कि इंडियन लोगों का जो एक फियरलेसनेस और जो एक एटीट्यूड रहा है चैलेंजेस के प्रति, वो अनकम्पेरेबल है एज कंपेयर टू एनी अदर मेजरली नोन सिविलाइजेशन। एंड दैट इज द रीजन कि हमारा सिविलाइजेशन आज तक इतने अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। एंड that is why we have been able to resist dharmic forces also. So this inner strength is actually a cultural hallmark of India, and the root source of this inner strength was Panch Mahayajna and Upasana. So if we look in today's time also, रीजनल जो हमारी डाइवर्सिटी है इंडिया की, जैसे राजस्थान अलग है, केरला अलग है, तमिलनाडु अलग है, बंगाल अलग है, इन सब के अलग होने के बाद भी, लैंग्वेजेस अलग होने के बाद भी, कुछ चीजें हैं जो आपको पूरे इंडिया में कॉमन दिखेंगी। पहली चीज, पेरेंट्स के प्रति एक श्रद्धा भाव रखना। जहां जहां पर भी थोड़ा भी धार्मिक अभी भी बचा है, धार्मिक सद्भावना बची है, उन सब परिवारों में आपको ये चीजें दिखेंगी कि पेरेंट्स के प्रति एक सद्भावना रहेगी, श्रद्धा भाव रहेगा, अतिथियों के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा, विद्वानों के प्रति श्रद्धा भाव आपको देखने को मिलेगा। मंदिरों में इवन इनफैक्ट आपको जो ग्रामीण अंचलों में जो मंदिर मिलेंगे, वहां पर भी आपको सुबह और शाम आरती देखने को मिलेगी। एक एक एटीट्यूड मिलेगा कि जहाँ पे लोग एक हायर सत्ता से, बेसिकली एक ईश्वरी सत्ता से जुड़ना चाहते हैं, कुछ ना किसी तरीके से उस संवाद को रखना चाहते हैं। और हमारा पशु पक्षियों के प्रति एक सद्भावना भी आपको ऐसे परिवारों में देखने को मिलेगी। वो गाय के लिए रोटी देंगे, कुत्ते के लिए रोटी देंगे, और पशु पक्षियों के लिए भी कुछ ना कुछ दाना पानी करेंगे। ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सो बेसिकली ये सब क्या दिखाता है, ये दिस इज ऑल इज अ अंडर करंट ऑफ पंच महायजना। द प्रॉब्लम इज दैट टुडे people don't have explicit understanding. उनसे पूछें कि why you are taking care of your parents, why you are taking care of scholars, what makes you so much so much uh, so much concerned about environment, rivers. They would say कि okay, it is just because of ethics and morality. No, this is not because of continued pass on of continuity of ethical pass on, or basically morality through family to family. The undercurrent is basically somewhere at some point in time our ancestors imbibed the Panch Mahayajna in our daily life, और वो फिर बेसिकली धीरे धीरे रोल ओवर होकर के आज हमारी डेली लाइफ में इतना मिल गया है कि तमिलनाडु, राजस्थान, बंगाल सब अलग अलग रीजनल डाइवर्सिटी होने के बाद भी ये एक पैटर्न आपको कंटिन्यूसली दिखेगा। जहां पर भी धार्मिक सिविलाइजेशन है, आज आप पाकिस्तान जो भारत से अलग हो गया है, इस सिस्टम से अलग हो गया है, वहां पे आपको ये सिस्टम नहीं देखने को मिलता। ओके, वहां पे आपको ये फैमिली का वैल्यूज उन परिवारों में नहीं मिलती, जबकि किसी समय वो इंडिया का पार्ट हुआ करता था। तो ये बताता है कि जब तक आप इंडिया के रूट से, इंडिया के कनेक्शन से, धर्म से जुड़े हुए हो, ये अंडरकरंट आपके अंदर फ्लो होगा। अगर ये मॉरलिटी होती, एथिक्स होता, जो एक नेचुरली ह्यूमन आइडेंटिटी के थ्रू आना होता, तो फिर ये आपको पाकिस्तान में भी मिलता, बांग्लादेश में भी मिलता, जो अर्स्टवाइल इंडिया के पार्ट हुए थे। ओके, तो हमारा प्रपोजल ये था इस पेपर के थ्रू कि हमें एक एक्सप्लिसिट रिवाइवल करना होगा संध्योपासना एंड पंच महायज्ञ का। रीजन बीइंग कि आज के समय में दिस दिस वेरी प्रैक्टिस ऑफ पंच महायज्ञ, बेसिकली our tradition of passing on of values and morality, ये इतनी complicated and ritualistic oriented हो गई है कि हम इसे इसके ट्रू फॉर्म में पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज आप सबने नोट किया होगा कि लोग क्वेश्चंस तो करते ही हैं कि ये रिचुअल हम क्यों फॉलो करें, ये वाली चीज क्यों कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज सो कॉम्प्लिकेटेड, वी डोंट हैव अ राइट आंसर फॉर दैट। But if you brought it down to the original work of Panch Mahayajna, everything is very much explainable. You can explain yajna, you can explain why you need to do meditation, you can explain why you need to take care of your parents, scholars, education, very much explainable. But जब आप इसको complex rituals में डाल देते हो, जो कि इंडिया के हर क्षेत्र में अलग अलग हो रखे हैं, it becomes difficult, it becomes basically fragmented. तो इसलिए एक्सप्लिसिट रिवाइवल बहुत जरूरी है, और कल्चरल वे में ये कनेक्ट करता है पूरी सोसाइटी को। बिकॉज श्री राम से कनेक्ट करने वाले कन्याकुमारी में रहने वाला व्यक्ति भी होगा, और कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति भी श्री राम से कनेक्ट करेगा। सो कल्चरली इट एक्चुअली बाइंड्स अस।
ओके। एंड मेडिटेशन जो फिलॉसफी और उपासना के साथ किया जाता है, जैसे कि सांख्य दर्शन और योग दर्शन में, तो अगेन इट विल ब्रिंग क्लैरिटी। आज के समय क्योंकि सिर्फ जो संध्योपासना या हम आरती भी करते हैं वो सिर्फ हम आउटर डोमेन में होके करते हैं, बेसिकली चित्त हमारा उसमें एक्टिव ही रहता है, हमारा माइंड डिस्कनेक्ट नहीं होता, हमारा आत्मा आत्मा और माइंड का जो डिस्कनेक्शन चाहिए होता है वो अचीव नहीं करते हैं। तो हम अल्टीमेटली ज्ञान और कर्म के डोमेन में ही फंक्शन करते रहते हैं। एंड जब ऐसा होगा तो हमारे जो सोशल यजना है, जो बाकी के यजना है, पितृ यजना, अतिथि यजना, दीज ऑल वर इवॉल्व, ट्रस्ट बढ़ेगा, कॉपरेशन बढ़ेगा। और इसके लिए एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी इससे ये ओपन होती है कि हमारे अंदर आत्मबल बढ़ेगा हमारी सोसाइटी में, अगर ये एक्सप्लिसिट रिवाइवल होने लगता है तो हम फिर से स्कॉलर्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, हम फिर से ऐसे विद्वान प्रोड्यूस कर पाएंगे जैसे कि स्वामी दयानंद हुए, आचार्य चाणक्य हुए, स्वामी विवेकानंद, गार्गी, एंड रूलर्स जैसे कि महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, अहिल्याबाई। सो ये सब अगर रूलर्स, इन सब की लाइफ को आप देखेंगे, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ इन वैल्यू सिस्टम के अराउंड मूव करती है। और आपको अगर एक भारत के स्केल पर इस तरह के लोग चाहिए तो आपको फिर से ये पंच महायज्ञ और उपासना का सिस्टम रिवाइव करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग इंसाइट ये थे कि दिस इज नॉट अ रिटर्न ऑफ पास्ट बट इट इज अ रिकवरी ऑफ आवर इनर स्ट्रेंथ। And when we do that, our future of the humanity will automatically align for the best of its future, basic best of its possibilities. तो इसके साथ ये हमारा प्रेजेंटेशन तो ओवर हो गया। मैं अब आपको एक ओवरव्यू देता हूँ पेपर का। सो पेपर स्टार्ट्स विद एन एब्स्ट्रैक्ट एंड इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि हमने अभी ऑलरेडी कवर किया ही है। इंट्रोडक्शन पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट तैत्तिरीय उपनिषद का मैं आपको शेयर करता हूँ कि व्हाट वी हैव रिटन इज दैट कि this very concept of Panch Mahayajna, like Matra Devo Bhava, Pitra Devo Bhava, is also mentioned in Taittiriya Upanishad. Often what happens is that कि हम इसको सोचते हैं कि whatever is written is moral or religious exhortations, but when viewed within the broader civilization context, they function as organizing principle of social life. So important बात ये है कि ये जो पंच महायज्ञ का सिस्टम है, बेसिकली इट इज एन इंजीनियर्ड सिस्टम, इट इज नॉट जस्ट अ मॉरल और रिलीजियस एग्जॉर्शंस। ओके, दिस इज अ ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल जिसके थ्रू हमारे एंसेस्टर्स ने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया था। और by sacralizing foundational relationship, they placed gratitude, restraint, and responsibility at the center of human existence without reliance on coercive authority. अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे कहीं पे भी सिविलाइजेशंस को जो भारत के बाहर हुई, वहां पे क्या होता है, या तो एक कोर्सिव अथॉरिटी चाहिए होती है जो सब लोगों को बाइंड करती है। लेकिन भारत में ऐसी कोई अथॉरिटी इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, वैदिक टाइम्स में भी। तो बेसिकली पंच महायज्ञ के थ्रू ही हम क्या करते हैं, हम एक ग्रेटिट्यूड डेवलप करते हैं सोसाइटी में, ऑटोमेटिक ग्रेटिट्यूड डेवलप होता है, एक रिस्ट्रेन डेवलप होता है कि नहीं, हमें इंद्रियों के विषयों की तरफ इतना नहीं भागना कि वो समाज में दूसरों को नुकसान पहुंचा दे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना डेवलप होती है। सो इसीलिए ये एक सोशल इंजीनियरिंग है, ये कोई मॉरल और रिलीजियस एग्जॉर्शंस नहीं है। आगे जो हमने इसमें कवर किया कि stability of family life, economic activity, education, and social care depends largely on householders who must act under the condition of time pressure, emotional complexity, and uncertainty. तो ये बताता है कि वैदिक हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने कितने सूक्ष्मता से जीवन को देखा और समझा कि भाई जब आप एक हाउस होल्डर का जीवन जी रहे हैं, आपके पास टाइम प्रेशर होगा, आपको यू you नो आपके वर्क को भी मैनेज करना है, परिवार को भी मैनेज करना है, और बहुत सारी इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी कि हो सकता है आपके पत्नी और आपकी मदर के बीच में शायद बन नहीं रही है, या आपके पति या आपके बच्चों के साथ में आपका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बैठ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज में भी आप कैसे अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाएंगे, कर पाएंगे, डायरेक्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए ये जो सिस्टम है ये बार बार आपको एक एंकर की तरफ लेकर के आता है। तो वैदिक रिस्पॉन्स टू दिस चैलेंज वॉज टू कल्टिवेट आउटवर्ड बिहेवियर अलोन। तो हम आउटवर्ड बिहेवियर को तो रेगुलेट करने का प्रयास करते ही हैं थ्रू पासिंग ऑफ बेसिकली स्क्रिप्चुरल रेफरेंसेस, स्टडी, ये तो होता ही है, ये तो सब जगह होता है। लेकिन डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट हमारे यहाँ पे ये होता है कि इनर डिस्पोजिशन भी हम क्रिएट करते हैं।
Then this research paper was divided into two parts. First was जहाँ पे हमने डिस्कस किया वैदिक सिविलाइजेशन फ्रेमवर्क, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी अभी बताया, और दूसरा पार्ट है जहाँ पे संध्योपासना फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी के साथ इंटीग्रेट होती है। सो फर्स्ट पार्ट में हमने यज्ञ के बारे में डिस्कस किया और ये बताया कि जो यज्ञ जो है प्राइमरीली इसके तीनों मीनिंग हैं, दान, पूजा एंड संगतिकरण। बट संगतिकरण का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल कॉन्टेक्स्ट में एंड सोशल रेफरेंसेस में, बिकॉज दिस संगतिकरण एक्ट्स एज अ दिस इज द एक्ट ऑफ एसोसिएशन, इंटीग्रेशन और हार्मोनाइजेशन। बेसिकली जब संगतिकरण के रेफरेंस के माध्यम से जब हम यज्ञ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारी सोसाइटी में हार्मनी लेकर के आता है। ओके, नाउ हमने फिर पंच महायज्ञों को एक्सप्लेन किया कि क्या क्या इनके रोल्स होते हैं, कैसे देखा जाता है। और पंच महायज्ञ बेसिकली इनेबल्स अ डिसेंट्रलाइज्ड एथिकल एंड रेजिलिएंट सिविलाइजेशन कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग नॉलेज, कंपैशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्रॉस जनरेशंस। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये है कि इट इज अ what it enables a decentralized ethical and resilient civilization. So decentralization word is very important here because जहाँ पर भी क्या रीजन है कि भारत की सिविलाइजेशन कभी भी खत्म नहीं होती, इट जस्ट लाइक नेचर। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो इतनी डिसेंट्रलाइज्ड है कि आप किसी एक पॉइंट को टारगेट करके उसको खत्म नहीं कर सकते। ओके, वो कहीं ना कहीं फिर से इट विल जस्ट ओपन अप, इट विल जस्ट फिर से वो हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो ये वैदिक सिविलाइजेशन का एक आइडिया है कि यहाँ पर जो समाज है वो अपने आप में इतना कैपेबल हो, इतना स्ट्रेंथन हो कि कोई एक व्यक्ति को टारगेट करे। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ईरान में कर रहे हैं, तो ईरान क्या है, सेंट्रलाइज सोसाइटी है। वहां पर अगर आपने एक व्यक्ति को टारगेट किया, इट इज वेरी मच पॉसिबल टू पूरी सिविलाइजेशन को आप कंट्रोल में कर लो। लेकिन इंडिया में कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। इंडिया में इतना डिसेंट्रलाइजेशन रहा है और इसीलिए वेद क्या करता है, इंडिविजुअल लोगों को कैपेबल बना करके उन्हें संगठित होने का कहते हैं। तो संगठितकरण जिसे कहते हैं, और इंडिविजुअल स्ट्रेंथन। तो इससे समाज इतना ज्यादा कैपेबल बनता है कि डिस्पाइट रिपीटेड अटैक्स आपकी वो जो सोसाइटी है, वो वैल्यूज है, वो फिर से डेवलप हो जाती हैं, फिर से रिवाइव हो जाती है। देन वी डिस्कस्ड कि ब्रह्म यज्ञ हमेशा भारत में नॉन नेगोशिएबल रहा है, कि जितने भी 5 यज्ञ हैं उनमें से ब्रह्म यज्ञ इतना कैपेबल रहा है और ऐसा इंपॉर्टेंस का रहा है कि ये कभी भी लाइफ की किसी भी स्टेज में इसको इसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है। चाहे सन्यासी भी अगर कोई व्यक्ति है तो उसको भी इससे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। देन वी गेव द एग्जाम्पल ऑफ आचार्य चाणक्य कि उन्होंने कैसे इसको रूट से कंपेयर किया। और यहाँ पर ये पैराग्राफ हमने बहुत इंपॉर्टेंटली इसको रखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फॉर्मुलेशन लाइज नॉट ओनली इन इट्स इमेजरी। बेसिकली जो वृक्ष का जो फॉर्मुलेशन जो आचार्य चाणक्य ने किया कि संध्या इज रूट, वेदास आर ब्रांचेस एंड लीव्स आर बेसिकली धर्म। सो ये इमेजरी में ही अच्छा नहीं है, बेसिकली इट ऑल्सो इन इट सोर्स कि किसने कहा है, ये आचार्य चाणक्य ने कहा है। चाणक्य वॉज द रियलिस्ट थिंकर कंसर्न विद गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स एंड लॉन्ग टर्म सोशल स्टेबिलिटी। His identification of Sandhya as the root of civilization reflects a clear recognition that ethical systems and knowledge traditions cannot sustain themselves through transmission alone. यानी कि ये आजकल कई जगह पर मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बस हम तो अपनी मॉरलिटी को, अपने एथिक्स को पास ऑन कर देते हैं बता बता करके ही। आप नहीं कर सकते, आपको उपासना को इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप एक जनरेशन को बताएंगे कि आपको सत्य बोलना है, आपको चोरी नहीं करनी है, लेकिन वो जो है, वो जो चीज है वो डाइल्यूट होती जाएगी। तो इसीलिए clear recognition that ethical system and knowledge tradition cannot sustain themselves through transmission alone. They require continuous inner discipline within individuals. When this discipline erodes, institution may persist in form, but their animating coherence weakens. और इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा आज के समय में कोरियन सिविलाइजेशन का। We have not mentioned it here because of it's a research paper, but in a discussion we can definitely talk about it. कि that Korean civilization, basically South Korean civilization is very much intact in its form. वहाँ पर आपको लोग अभी भी अपने ओरिजिनल जो कोरियन लैंग्वेज है वो बोलते हुए दिखेंगे। उनके जो पास्ट स्ट्रक्चर्स है उसको बहुत अच्छे से they have maintained it. They have also maintained their एंशियंट ड्रेसेस, बेसिकली जो उनका पहनावा है उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। बट स्टिल
from a metaphysical point of view, the society has changed, has gone through a change, which you can definitely go through their, through conversions and all these things. The society has shifted its inner core of dharma. Karan kya hai? The reason is that they have always focused only on outer protection, and what we are here talking about the inner protection of society. और इसीलिए अभी आपको देखने को मिलेगा कि कोरियन सोसाइटी में एक्सटर्नल चीज़ों का बहुत वैल्यू हो गया है. लाइक आपकी स्किन, जो फैशन है, आप कोरियन फैशन को अगर आप देखेंगे, कोरियन मार्केट्स को अगर आप स्टडी करेंगे, तो मे बी दिस फोरम इज नॉट, मे बी द टाइम इज नॉट राइट फॉर ऑल दीज डिस्कशंस, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये है कि स्किन ट्रीटमेंट्स सबसे ज़्यादा वहाँ पर होते हैं. एंड जो बच्चों के ऊपर एक प्रेशर है, वहाँ पे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो दे आर इन हैवी प्रेशर, और अधिकांश बच्चे काफ़ी सारे बेसिकली सब्सटेंसेस को यूज़ करके अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं. सो दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन इन द कोरिया. सो संध्योपासना क्या है और क्या नहीं है? ये चैंटिंग नहीं है, ये सिर्फ रिचुअल और सिंबॉलिक नहीं है. बेसिकली ये उपासना का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है. और ये जो उपासना है, ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में सांख्य और योग दर्शन के पर्सपेक्टिव से ही होनी चाहिए. ये भी हमने इसको बहुत स्पेसिफिकली क्लियर किया कि कैसे सुषुप्ति का फ्रेमवर्क, जो हमने ऑलरेडी आचार्य जी के साथ में समझा है, वो संध्योपासना में इंपॉर्टेंट होता है. और संध्योपासना कैसे योगा के जो पर्सपेक्टिव है, चित्त वृत्ति निरोध को इनेबल करती है. ठीक है. देन हमने एक्सटर्नल जो हमारे लिटरेचर रिव्यू और स्क्रिप्चुरल कंटिन्यूटी के रेफरेंसेस इस पेपर में रखे. पार्ट 2 हमने बताया कि संध्योपासना कैसे इनर स्ट्रेंथ डेवलप करता है एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी को एड्रेस करती है. वी इन द फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे हमने बात करी आत्मबल की. सो इन इंडियन सोसाइटी you will always find कि आत्मबल और शरीर बल, basically the inner strength and the strength of the body, if we compare these two, always inner strength, आत्मबल को हमेशा प्रायोरिटी मिलती है as compared to inner strength, body strength. So ये दयानंद सरस्वती के वर्क में भी हमें देखने को मिलता है. चैप्टर 6 में ही makes a direct assertion regarding supremacy of आत्मबल. He states that when inner strength understood as vidya supported by discipline is cultivated even without corresponding body strength, such individual can overcome many learned person. Inner strength is thus presented as an independent and decisive civilization force rather than a secondary moral attribute. और ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब हम कंपेयर करें अगर डिफरेंट सिविलाइजेशन को, फॉर एग्जांपल मंगोल सिविलाइजेशन को अगर हम कंपेयर करें चंगेज खान की, सो फिजिकल पावर का था, उसमें फिजिकल पावर विदाउट इनर क्लैरिटी टेंड्स टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट. सो जो भी उनका सिविलाइजेशन एम्पायर था वो कॉन्फ्लिक्ट के बाद पूरा खत्म हो गया. इंटेलेक्चुअल पावर की सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट डे अमेरिकन सिविलाइजेशन कैन बी सेड टू बी बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल सिविलाइजेशन, बट this intellectual power without discipline tends toward disorder. So Atmabal functions differently. Inner strength cultivates the capacity to pause, discern, and restrain actions. It integrates power with responsibility and knowledge with humility. So that is the reason Indian civilization continued for thousands and thousands and thousands of years. So basically, we talk in terms of yogas, not in terms of years, when it comes to continuity of our civilization. And now coming to relevance to the modern society. अगेन मॉडर्न सोसाइटी में प्रोसेस जो है, बेसिकली हमारे पास आज अनप्रेसिडेंटेड फिजिकल पावर है, टेक्नोलॉजी है, अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है. इसीलिए these advances coexist with ethical fatigue and psychological distress, and that's why to address these challenges संध्योपासना is important, because past में हमने ऐसा किया है तो हम आज भी फिर से कर सकते हैं. So yeah, this is about the paper, and that's it from my side. And yeah, this is the conclusion part. This paper and the broader effort towards reviving Sandhyopasana seeks to re-establish Upasana as one of the core discipline of life. Such a reorientation implies a cultural shift in which parents become as attentive to whether children cultivate meditative steadiness as they are to academic progress, and adults feel an intrinsic responsibility towards inner discipline comparable to their concern for professional excellence and intellectual growth. And any meaningful revival of Sandhyopasana and Panchmahayajna must be structural rather than symbolic, because symbolic
हम रिवाइवल करने का बहुत कुछ चीज़ कर चुके हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चरल होना चाहिए। बेसिकली हमारी लाइफ में डेली प्रैक्टिस का ये पार्ट होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हमें किसी ओकेजन पे हमने इकट्ठा होकर के कर लिया। फॉर एग्जांपल द वे वी हैव रिवाइव्ड, फॉर वी फोकस ऑन योगा, हठ योगा। सो इट्स मोस्टली अ सिंबॉलिक प्रैक्टिस कि एक दिन 21 जून को आते हैं लोग बाग, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, दैट्स फाइन। बाकी टाइम अपना लाइफ वैसे ही जंक फूड खाने में और इस तरह से ही जीते हैं। लेकिन हमारे को पंचमहायज्ञ और संध्योपासना का रिवाइवल ऐसा नहीं चाहिए। It has to be very structural. It has to be part of our daily practice, daily interaction, and community work. So that's the final part of the paper. Thank you. Namaste. Good. Ronak, it needs time to understand this, what you have done. But one silly question, I mean, could you explain what is Panch Mahayagna? There are 5 types of yagnas, or it's one word which you have been defining? So it's a one system divided into 5 yajnas. Okay. So So you have system named is, one Brahma Yajna. But what are the other 4? yeah. So first one is Brahma Yajna. Second one is Dev Yajna. देव यज्ञ बेसिकली व्हेन वी डू अग्निहोत्र, तो जब हम अग्निहोत्र करते हैं सुबह दैनिक अग्निहोत्र, सो दैट इज देव यज्ञ। इट इज प्राइमरी डन कि हम इससे इन्वायरमेंट को फिर से वी गिव बैक टू द एनवायरमेंट। Yeah, ओके। yeah. एंड देन थर्ड वन इज पितृ यज्ञ, Okay. wherein we take care of our ancestors, our rishis. So basically जैसे हम आचार्य जी से अभी शिक्षा ग्रहण करी, इस शिक्षा को ग्रहण करके हमें इस शिक्षा को आगे प्रसारित करना, वो आचार्य जी की सेवा है। सो दिस इज अ पितृ यज्ञ। सो हम आचार्य जी की सेवा कैसे करें? जब वो हमारे घर पे आए तो हम खाना खिलाएं, उन्हें बहुत अच्छे अच्छे थोड़ा चीजों सा से खाना उनकी खिलाएं. सेवा करें। लेकिन जब वो घर पे नहीं है ना, तो हम क्या करें? तो हम उनकी जो विद्या है उसे अच्छे से अपने जीवन में उतार करके उन्हें दूसरों को सिखाएं। तो ये पितृ यज्ञ है। अतिथि यज्ञ, सो अतिथि यज्ञ बेसिकली उनको इनवाइट करना, और पितृ यज्ञ का मतलब है आप उनके घर पे जाकर उनकी सेवा करें। ओके। सो नॉलेज प्रिजर्वेशन दोनों तरीके से किया गया कि भारत में जब आप ऐसे स्कॉलर्स जो घूम रहे हैं उनको आप अपने घर पे इनवाइट करें, उनसे नॉलेज लें, उनसे ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक नॉलेज लें। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे भारत में बहुत जगह पर धर्मशालाएं बनी हुई हैं आज भी। ओके। धर्मशालाओं में क्या होता था कि जैसे मैं लेट्स से मैं एक कॉमर्स का पर्सन हूँ, मैं एक वाणिज्य करने वाला पर्सन रहा हूँ। 60 ईयर्स के बाद मैंने वानप्रस्थ ले लिया, और वो व्यक्ति क्या करता है? घूमता है, वो धर्मशाला में रुकता है, वहां से उसको लोग इनवाइट करते हैं, तो वो अपने क्षेत्र की नॉलेज उस जगह पर डिसैमिनेट करता है कि देखो मैंने इस बिजनेस को ऐसे किया था, इस बिजनेस में तुम भी ऐसे करो। सो आज तो देखिए इंफॉर्मेशन का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। गो बैक टू 200-300 ईयर्स बैक कि कैसे इंडिया फंक्शन करता था। तो इंडिया बेसिकली फंक्शन करता था पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ के थ्रू। नॉलेज डिसैमिनेशन पूरी सोसाइटी में इस तरह से होता था। एंड दैट इज वाई इतना बड़ा आयुर्वेद का नॉलेज, इतना बड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज प्रोटेक्ट हो पाया, प्रिजर्व हो पाया। तो पितृ यज्ञ में हम अपने घर पे, जो हमारे घर पे स्कॉलर्स हैं, हमारे घर पे पिता और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनसे जो नॉलेज मिला है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लस जिन आचार्यों से हम पढ़ते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होकर के उसे अपनी लाइफ में सीख करके आगे पास ऑन करते हैं। सो दिस इज पितृ यज्ञ। सो 4 यज्ञ मैंने आपको बता दिए। फिफ्थ यज्ञ इज अ बलि वैश्वदेव यज्ञ, बेसिकली विच इज अबाउट टेकिंग केयर ऑफ वल्नरेबल बींग्स, जहाँ पे पशु पक्षी और रोगी और दरिद्र आ जाते हैं कि जो लोग अपनी केयर नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी हम कुछ अपने पास से करें। और इसका एक बहुत ही एविडेंट एग्जाम्पल आज की सोसाइटी में भी आपको, मतलब थर्ड टीयर 3 सिटीज में तो मिलेगा कि लोग खाना खाने से पहले अपने भोजन में से छोटा सा हिस्सा निकाल के रखते ही निकाल हैं, देते हैं. है ना? सो ये इसीलिए निकालते हैं कि वो पशु पक्षी को जाएगा। गाय की रोटी पहली बनती है तो वो गाय के लिए जाएगी जाएगी। सो ये बलि वैश्वदेव यज्ञ का एक पार्ट है। बट वैदिक टाइम्स में बलि वैश्वदेव यज्ञ ऐसे नहीं होता था। उसमें बेसिकली आप यज्ञ में, जो दैनिक यज्ञ है उसमें भी अपनी आहुति देते थे, और उसके बाद फिर एक उनको खाने के लिए भी हिस्सा निकालते थे। सो अभी वो दैनिक यज्ञ तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गया है। सो these are the तो 5 yajnas. मैं It is one system हाँ, integrated by Brahma yajna. ओके. Yeah.
इसको अलग से भी कहीं एक्सप्लेन किया या मैं मिस कर गया हूं? वही मैं बीच में, जब इसको आप इसको कहते हो। हमने पेपर में एक्सप्लेन किया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में ठीक है, इसलिए ठीक एक्सप्लेन नहीं ठीक। किया क्योंकि अधिकांश लोगों को ये सबको पता रहता पता है, है, तो तभी मैंने कहा था मैं अनार्य हूँ, हाँ। या सोच रहा था ये पंच है कौन से। हाँ जी, हाँ, थैंक यू सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए कविंदर जी। हाँ, जी। सब पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, सब कुछ मालूम हो जाएगा। हाँ, पढ़ा मैंने कुछ साल नहीं पहले। फिर ये तो मिस कर दिया आपने। पंच महायाज। हाँ। हम्म। तो तो रौनक जी नमस्ते, मैं ये पूछना चाह रही थी कि संध्योपासना का ओरिजिन कहाँ पर है? वेदास से ओरिजिन है या कुछ और ओरिजिन है संध्योपासना का? इस पर तो सही उत्तर तो आचार्य जी दे पाएंगे। जो मैंने समझा है वो ये समझा है कि वेदों से उपासना का प्रिंसिपल इमर्ज होता है। एंड जो ऋषियों का जो कार्य है बेसिकली, जैसे सांख्य दर्शन और योग दर्शन है, जी। वो उसको ऑपरेशनलाइज करता है। और राइट। ऋषियों ने ही बेसिकली, जैसे अग्निहोत्र को, अग्निहोत्र का सिस्टम डेवलप किया। सी, अग्निहोत्र का जो इंस्पिरेशन है वो तो हमें वेदों से मिलता है, जी उपासना का इंस्पिरेशन भी वेदों से मिलता है। ऋषियों ने बेसिकली इसकी सिस्टम को डेवलप किया कि ये होना कैसे है, कि अगर हमें मेडिटेशन करना है तो हमें किस प्रोसेस के थ्रू मेडिटेशन करना चाहिए। जी और बेसिकली संध्योपासना का स्ट्रक्चर भी इस पेपर में कवर है, कि जैसे इसमें आचमन होता है, उसका जी। पर्पस क्या है। उसका पर्पस ये है कि हम सबसे पहले बिगिन करें सॉफ्टनेस के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में। हम्म। फिर इसमें एक इसमें प्राणायाम होना ही चाहिए। तो आपको संध्योपासना के हो सकता है बहुत सारे वर्जन्स मिल जाएंगे भारत भर में, जी लेकिन सारे वर्जन इस स्ट्रक्चर से कंप्लाई करेंगे कि देयर विल बी आचमन, देयर विल बी प्राणायाम, एंड देन देयर विल बी संकल्प। ओके। जी सिमिलरली हर संध्योपासना में आपको अघमर्षण और दिक दिक नमस्कार मिलेगा। हर हम्म। संध्योपासना में आपको गायत्री मंत्र मिलेगा ही मिलेगा। सो ये कुछ स्ट्रक्चरल आइडियाज हैं जो ऋषियों ने डेवलप किए, so that जी। it remains a structural work, not a random Vedic chanting. राइट। So that's why लेकिन Sandhyopasana is different. तो आपने संध्योपासना को रूट कहा और वेदास को ब्रांचेस कहा, तब मुझे ये प्रश्न आया कि आई वॉज थिंकिंग वेदास आर द रूट एंड संध्या, सिंस इट हैज कम करेक्ट करेक्ट। देयर, इट इज द ब्रांच। संध्या इज अ Correct. So that ब्रांच ऑफ द रूट वेदास। जस्ट ऐसे मुझे समझ आ रही थी बोलते हुए, तो जस्ट वांट टू नो मोर अबाउट दैट। क्योंकि it is इसके more इसके about इसके ओरिजिन के बारे में किसी उपनिषद में भी नहीं देखा मैंने काफी पढ़े कि ये, देखो, या इस पर कोई। संध्या का स्टैंड अलोन नहीं है ये। हाँ, संध्या का नाम जो आया है ना, तो संध्यायते सम्यक तरीके से, ठीक तरीके से जब आप ईश्वर की उपासना करते हो, और वो दो समय पर करी जाती है। एक सुबह के संध्या टाइम में, संध्या का टाइम इज व्हेन द सन एंड द सन, गोधूली का समय, ठीक है ना, वो इवनिंग को भी है। तो इवनिंग बेसिकली गोधूली। नाम तो इसका वहां से आया है। और इसकी पद्धति जो है वो, जैसे हमारे समाजों के लिए स्वामी जी ने कुछ चुने हुए मंत्रों को दे के, और पूरे, या जैसे रौनक जी ने कहा कि एक सिस्टम को दे के, कि जिसमें हाँ, आचमन भी होगा अपने गले के लिए, और प्राणायाम भी होगा, और शरीर की शुद्धि और शरीर की स्ट्रेंथ के लिए प्रार्थना मंत्र भी होंगे। और फिर उसके बाद अगर हम आर्य समाज की संध्या देखो, तो उसमें बहुत एक तरीके से एक सिस्टम चल रहा है, जिसमें आपने पहले किया, आपने गायत्री मंत्र को किया, फिर उसके बाद आपने अपने हाँ। शरीर की शुद्धि के लिए किया, फिर अपने अंग स्पर्श के लिए ईश्वर से प्रार्थना करी कि मेरे अंग जो सुदृढ़ रहें, और फिर उसके बाद आपने ईश्वर की थोड़ी सी प्रार्थना इसका करी। मतलब ये आर्य समाज की स्थापना से जुड़ा हुआ है, हाँ, बजाय इसके आर्य कि समाज हम की, इसको हाँ बिल्कुल, उपनिषदों में कहीं स्वामी ढूंढें। जी ने इसको दिया है, पर जैसे रौनक नहीं, जी ने एक कहा, सेकेंड। संध्याएं बहुत मैं हैं, संध्याएं बहुत हैं। मैं इस पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ये देना चाहूंगा कि संध्याएं डेफिनेटली बहुत सारी हैं, लेकिन जो हम इस पेपर में बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि आर्य समाज के संध्या की बात कर रहे हैं। हम एक सिविलाइजेशन फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। जी और जो वेद, जिसको हम जो कह रहे हैं कि वेदों से संध्या निकली है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो वेदों के विषय की बात हो रही है। तो वेदों में 3 विषय हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। अगर अब इन 3 विषयों को मुझे स्ट्रक्चरली मैप करना हो, एक एक इसको एक मैपिंग करनी हो, तो जो चाणक्य सूत्र है, चाणक्य नीति में जो आता है, वो ये कहता है कि उपासना इज बेसिकली इज द रूट। ओके। वहां अच्छा। पर जो ज्ञान है उसको वेदों से इंडिकेट किया गया है कि वेदों से हम प्रैक्टिकली करते क्या है, वेदों को पढ़ के हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, है ना।
लाइफ के ज्ञान को, और जो भी हमें फंडामेंटल नॉलेज चाहिए होती है सोसाइटी के अराउंड, और जैसे भी पुराने टाइम में भी रहता होगा, जो भी वेदों का एक इम्पोर्टेंस ज्ञान के लिए था, आज भी है। तो वो जो पार्ट है दैट इज ब्रांचेस। ओके। सिमिलरली जो धर्म है बेसिकली कर्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, तो वो हमारे लीव्स के समान है। तो ये जो मैपिंग है ये इसको ध्यान में रख करके है। ये ऐसे नहीं है कि संध्या वेदों से निकली है इसलिए संध्या वेद पहले रूट्स हो गए। हमेशा रूट्स वो रहेगी जो उसको सस्टेन करती है। सो अगर उपासना के थ्रू आप इंटरनल जो आपका डिस्क्रिशन है वो डेवलप नहीं करेंगे, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको पितृयज्ञ में देता हूँ। अगर हम संध्योपासना के बिना, एक इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन को लाए बिना, अच्छा इनर ओरिएंटेशन डेवलप किए बिना पितृयज्ञ करते हैं, तो आज के समय में वो अब एक तरह से भक्ति बन गया है, व्यक्ति की भक्ति। ठीक है। उसमें होता यह है कि एक व्यक्ति किसी एक गुरु के साथ ही बस अटैच हो जाता है, और उसके लिए सोर्स ऑफ नॉलेज एंड सोर्स ऑफ एवरीथिंग बिकम्स दैट गुरु ओनली। उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि जो भारत की परंपरा ये थी कि आप दूध और पानी को अलग करना सीखिए, आप हंस के समान बनिए। कि देखिए, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हर एक के पास अलग अलग नॉलेज है, अलग अलग कैपेबिलिटीज है। अगर व्यक्ति, आप खुद ही देखिए कि अगर एक के साथ ही अटैच हो गया और वो दूसरों की बात सुनना भी नहीं चाह रहा है, तो होता यह है कि वो फिक्स हो जाता है, रिजिड हो जाती है सोसाइटी। जो फ्लूइडिटी होनी चाहिए सोसाइटी में वो खत्म हो जाती है। वहीं पितृयज्ञ का कंसेप्ट अगर तब सही से होता है जब मैं उपासना करता हूँ और नॉलेज का स्रोत ईश्वर को मानता हूँ, और बाकी जने फिर क्या है, माध्यम बनते हैं। और ऐसे में वो व्यक्ति सबके प्रति विनयशील होता है, हर विद्वान के प्रति विनयशील होता है, और तब वो आप देखेंगे नेचुरली बहुत अच्छे से नॉलेज को ग्रैब कर पाएगा, रिफ्लेक्ट कर पाएगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग बिकमिंग डिफेंसिव कि अरे आपने मेरे गुरु के बारे में ऐसा कैसे कह दिया, या आप मेरे गुरु के अलावा तो और कोई बात सच हो ही नहीं सकती है। ऐसा होने की जगह आप बात करेंगे कंसेप्ट के लेवल पे, आप बात करेंगे फिलोसफी के लेवल पे पितृयज्ञ में। सो ये कब हो पाएगा? ये तब हो पाएगा जब आप उपासना कर रहे हो, जब आप ईश्वर से जुड़े हो, कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़े हो। सो इसीलिए हमेशा उपासना जड़ होती है, वेद और धर्म जो है वो जड़ नहीं होता। धन्यवाद रौनक जी, वेरी कन्विंसिंग, थैंक यू। अच्छा रौनक, ये जैसे रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूला कर्तव्यम दैव मानसिकम, तो ये क्लियर संध्या उपासना का मंत्र है, श्लोक है। महाभारत में कहां पर इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है? महाभारत में इसका आपको उद्योग पर्व में मिलेगा, जहाँ पे भीष्म पितामह ये कहते हैं कि पूर्व काल में ऋषियों ने संध्या करके दीर्घ जीवन को प्राप्त किया। ये एक उदाहरण हमने इसमें दिया भी है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने महाभारत काफी साल पहले पढ़ी, स्वामी हम्म जगदीशानंद जी वाली, और कुछ ऐसा याद आता है कि युद्ध के समय एक दिन हम्म, शाम को युद्ध खत्म नहीं हुआ और वो रात तक चला। तो पहले तो हाँ कृष्ण ने 45 मिनट की योग निद्रा दी सबको, और जब सूरज निकला तो सबने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ के संध्या उपासना की। हाँ, आपको ऐसे रेफरेंसेस मिलेंगे, बट वो सारे रेफरेंसेस मैंने इस पेपर के लिए कलेक्ट नहीं किए, तो इसलिए मैं आपको अभी डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अनुशासन पर्व का 104 अगर श्लोक है आप पढ़ेंगे महाभारत में, वहां पे लिखा है ऋषियों दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घमायु समाप्नुयुः। सो ऋषियों ने संध्या करके दीर्घ आयु और दीर्घ जीवन को प्राप्त किया। तो ये क्लियर एविडेंस है, और आपको ऐसे और भी एविडेंस मिलेंगे। तो बेसिकली इसके अलावा महाभारत में ही जो भगवत गीता का पार्ट आता है, वहां पे श्री कृष्ण अपने आप को कहते हैं कि ऋषियों में मैं कपिल के समान हूँ। बेसिकली हाँ। इट इज नाउ अ सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन कि कैसे उपासना इंटीग्रेटेड है। ऋषियों में मैं कपिल के समान हूँ, वेदों में मैं सामवेद के समान हूँ, और छंदों में मैं गायत्री के समान हूँ। गायत्री। अब आप नाउ देखिए कि उपासना क्या चीज है। उपासना क्या है? उपासना है प्राइमरीली गायत्री मंत्र के अराउंड होती है। उपासना का जो कंसेप्ट है वो सामवेद से आता है, और उपासना का जो फिलॉसफी है, जो बेसिकली इसका जो दर्शन है, जो उसका जो ग्राउंडिंग है, ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है, वो कपिल ऋषि से आता है। ओके। तो ये जो तीनों बातें जो सिंबॉलिकली श्री कृष्ण कह रहे हैं वो दिखाता है कि इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ लाइफ इन महाभारत टाइम्स। मगर युद्ध के बीच में जब मैंने, हो सकता है मैंने
कितना सही हूं, मगर आचार्य जी शायद और अच्छे एग्जाम्पल देते हैं इसमें। युद्ध के बीच में हुआ कि सबने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, और वो एकमात्र वो दिन ऐसा था जो रात भर चला था। तो एक्चुअली क्या है कि मैंने बताया ना, जैसे हनुमान जी जब सीता माता की सर्च में जाते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो संध्योपासना करेंगी, तो बेसिकली उस टाइम पर संध्या करना इतना इंटीग्रेटेड पार्ट था कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये संध्योपासना किसी चीज की कोई वजह से नहीं करेगा। एक्सेप्ट हो जाएगी, एक एक्सेप्शन मिलेगा। हम्म, इनफैक्ट जब मैं नाम भूल रहा हूँ, एक यूरोपियन जब ट्रैवलर इंडिया में आए थे तो उन्होंने लिखा भी है कि भारत के अंदर युद्ध भी होते हैं, वो इतने सिविलाइज तरीके से होते हैं कि यहाँ पर किसानों पर अटैक नहीं किया जाता, सिविलाइजेशन सिविल स्ट्रक्चर्स पे अटैक नहीं किया जाता, और शाम को युद्ध नहीं होता। ये तो भी लास्ट 2000 ईयर्स की हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब हम महाभारत के टाइम पे बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर युद्ध के बाद और सुबह युद्ध शुरू होने से पहले डेफिनेटली संध्या होती होगी। इट्स नॉट अ सरप्राइजिंग। नहीं होती होगी कहने का मतलब, मैं ये कह रहा हूं, मैं ढूंढूंगा इसको, मैं दूंगा, वो कहां पर है, थोड़ा टाइम लगेगा। कि युद्ध के बीच में इसका प्रमाण है महाभारत में कि लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए दोनों तरफ से, और पहले उन्होंने संध्या की, फिर युद्ध शुरू किया। एक ही दिन ऐसा हुआ था। बहुत अच्छा। वेरी नाइस, वेरी नाइस रौनक जी। सब मिलके तो तालियां इस मारे हम अजीब, रौनक मैंने जी के लिए, नहीं सबसे नहीं, इतना पहले अच्छा अभी इस उन्होंने बोला। पेपर के जो मेन ऑथर हैं वो आचार्य जी को तो हाँ अपना कहना ही होगा, बहुत क्योंकि अच्छा। ये पेपर ऐसा नहीं कि मैंने लिखा है, ये आचार्य जी के गाइडेंस में लिखा है। तो हाँ। अभी हम आचार्य आपने जी उनके से कुछ कार्य सुनना को चाहेंगे। आगे ले जाने का श्रेय किया है आपने ऐसे। अपनी तारीफ सुन ली, अब आचार्य जी से थोड़े कान भी खिंचवा लीजिए, अब वो नहीं हाँ प्रतिक्रिया वो देंगे अब। देखो रौनक जी, सोर्स तो आचार्य जी हैं, पर आप वेदास की तरह लाइक ब्रांचेस बन गए हैं, आप और अनिल भाई आप साहब। मशाल आगे ले जा रहे दोनों भी बहुत ही अच्छा लगा। टॉर्च बियरर्स। हैं। वेरी थैंक नाइस। यू। चलिए, बहुत अच्छा आज का किसी, मेरे ख्याल से बहुतों ने अपनी बात कही है, बट एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन और कमेंट? आचार्य जी, कुछ टाइम पहले आप कह रहे थे कि ये साल में मैं 10 वॉलेंटियर्स आर्य समाज को दूंगा, तो आपके 2 तो बन ही गए। हाँ रौनक जी और अनिल जी तो आपने बना दिए, अब 8 और हैं। नहीं, ये दो तो पता था आचार्य जी को, इसके अलावा 10 चाहिए। अच्छा। हाँ, ये तो पूत के पांव पालने में नजर आ रहे थे आचार्य जी को। तो नहीं, आप और लोग कुछ अपने को हमें विचार करना है आज? आचार्य जी, उस दिन मैंने एक बार प्रश्न किया था, अगर उस पे कुछ जो सन्यास आश्रम था या जो उपनिषदों में या शास्त्रों में मिलता है, तो ये पुरुष प्रधान सा प्रतीत होता है। हालांकि क्या नाम है, दयानंद जी ने लिखा है कि पत्नी चाहे तो जा सकती है या बच्चों के साथ रुक जाए सन्यास लेते समय, मगर जो सारे जितने शास्त्र मैंने जो भी पढ़ा लिखा है, वहां पर सारी आदमियों की ही बात होती है। मतलब किसी की उपासना या मतलब उस ढंग से हुए सारे ऋषि मुनि सारे मेल हुए, तो केवल पुरुषों का ही, मतलब ऐसा क्यों है आचार्य जी कि ये पुरुष प्रधान, ये जो वर्ण व्यवस्था थी, सॉरी वर्ण आश्रम वगैरह, या मुक्ति का जो मार्ग है उसमें स्त्रियों का कम नाम लेना। हालांकि मुझे एक थॉट और आया बाद में कि जब आपसे मैंने पहली बार सवाल किया तो उसके 2-3 दिन बाद, कि स्त्री, मुझे लगता था स्त्रियों को कम चांस है, मगर अगर हम कर्मों के लिहाज से देखें तो स्त्री के पास बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो जो ईश्वरीय कर्म है वो स्त्री ही करती है संतान के लिए। निष्काम कर्म स्त्री से ही शुरू होता है। तो मुझे लगा कि ओके, एक बैलेंस ये बड़ा है कि जो जीवन मिला है अगर स्त्री रूप में, तो कम से कम नेचुरली आपके जो कर्म है बहुत सारे, वो बहुत श्रेष्ठ श्रेणी के होते हैं। ये प्रश्न आज की अभी इससे थोड़ा अलग है,
और बहुत आवश्यक है और बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रश्न के साथ आपने एक अंश में तो उत्तर दे भी दिया है। हाँ, वो ये बात की मैंने आपसे एक बार कहा था, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कि याज्ञवल्क्य संन्यास ले रहे हैं तो दोनों पत्नियों से कह रहे हैं कि तुम्हें आधा आधा मैं बांट देता हूं। तो ठीक है, एक पत्नी उनके साथ गई, मगर कहने का मतलब पुरुष ही क्यों, एक घर से रहो, एक एक गांव में एक दिन से अधिक मत रहो, मतलब इस ढंग की, मतलब जो सारे चीजें समझाई गई हैं वो पुरुष प्रधान लगती हैं। अकेले रहो और चुटिया काट लो, जो कहते हैं यज्ञोपवीत हटा दो, उसको पानी में, तो वो तो स्त्रियों के पास नहीं। तो जो इस ढंग की भी बातें हैं तमाम सन्यास की या वर्णाश्रम की, मतलब वनवास की, तो उसमें मुझको ऐसा लगता है, तो मैंने कहा मैं आपसे एक बार पूछूंगा जरूर। थोड़ा सा पूछा था मैंने एक बार, बट समय नहीं था आपके पास। नहीं, अच्छा प्रश्न है और इसका आपने उत्तर भी अच्छा दिया ही है। एक और बात पर हम ध्यान ले जा सकते हैं कि संबोधन में हम प्रायः बोलते हैं देवियों और सज्जनों। जी। तो इसमें भी जो आपने कही कि ईश्वरीय कर्म जो देवता के कर्म है, वो जैसे महिलाओं में वो नैसर्गिक भाव है। जी। और ये हम समाज में भी देखते हैं कि गलत काम करने से जो सजा आदि मिलती है, तो जेल में पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, महिलाओं की हम्म। बहुत कम होती है। जी। तो अपराध और वैसे काम महिलाएं बहुत कम संख्या में करती हैं, जैसे कि उनको रुचि नहीं है इस तरह की चीजों में। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि उन्हीं को माँ बनना है, उन्हीं को बच्चे में संस्कार देने हैं, तो उनका एक विशेष दायित्व है कि वो एक उदाहरण देकर आए। तो अभी रौनक जी ने भी जो प्रस्तुति दी, इसका आपने वो अलग ढंग से वो प्रचार भी कर रहे हैं संध्योपासना का। तो उसमें भी एक प्रस्तुति हुई है कि संध्योपासना या संध्या राम से लेकर राम तक, यानी वाल्मीकि रामायण के में उसका कितना महत्व बताया गया है। और आधुनिक काल में जो आयुष्मान से उत्पन्न जो एक प्रथम क्रांतिकारी है राम प्रसाद बिस्मिल, तो उसने भी अपनी आत्मकथा में जो भी उसे संस्कार मिले, उसने अपनी माता को बहुत स्मरण किया है। तो ये हम जानते हैं। तो महिलाओं का ये योगदान है। और भी मुझे एक बार बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी 3-4 साल पहले की बात है कि मैंने कुछ सुना कि शतरंज की महिलाओं की प्रतियोगिता हो रही है। तो मैं थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि शाही खेल कूद में तो चलो स्त्री पुरुष के खेल अलग होने चाहिए, क्योंकि पुरुषों में शारीरिक बल थोड़ा ज्यादा है, सामर्थ्य ज्यादा है। लेकिन शतरंज तो बुद्धि प्रधान खेल है, इसमें उन्होंने विभाजन क्यों किया है कि पुरुषों की प्रतियोगिता अलग और महिलाओं की अलग। तो इसमें भी मुझे यही रहस्य समझ में आया कि कोई महिलाएं यदि शतरंज में निपुण होना भी चाहती हो, युवती है, किशोरी भी है, तो वो उतना समय नहीं दे सकती जितना एक युवक दे सकता है करेक्ट। या एक पुरुष दे सकता है, क्योंकि उनको अपनी अलग जिम्मेवारियां हैं उनके पास। वो दिन भर शतरंज की चाल में ही नहीं बैठ सकती। तो ये एक शायद कारण है कि महिलाओं की प्रतिस्पर्धा अलग है। शतरंज जैसे खेल में भी जो बुद्धि प्रधान है, ऐसा नहीं है कि उनकी बुद्धि कम है और उनको अलग प्रतियोगिता होनी चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि एक महिला की जिंदगी जीवन, उसको बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत किसका
एक पुरुष तो चलो दिन भर ताश खेल सकता है, शतरंज खेल सकता है, और उसकी पत्नी या माँ या जो भी है वो उसका ध्यान रखेगी। पर महिला दिन भर शतरंज खेले या ताश खेले, वो स्वभाव से नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके ध्यान में कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, है ना। तो ये एक वैसी बात है कि किसी भी समाज में, किसी भी कम्युनिटी में, देश में जो भी दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, गलत चीजें हैं, अपराध हैं, उसमें पुरुषों की संख्या लिप्त होने की ज्यादा अधिक संभावना होती है, महिलाओं की कम होती है। और भी एक इसका दूसरा पक्ष भी है कि किसी भी विद्या में बहुत आगे बढ़ने की जो संभावनाएं हैं, उसमें भी पुरुषों को ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि वो अपना जीवन एक ढंग से निकाल सकते हैं। उनको अपनी माता का, बहन का, पत्नी का, बेटी का, किसी का सहयोग मिल जाएगा। पर महिलाओं के साथ ऐसा संभव कम है। तो ये सब बातें हैं। तो जैसा अपने शुरू में आपका प्रश्न था, उपदेश भी उसे ही दिया जाता है जो जिसके पतन की संभावना ज्यादा है। जिसके पतन की संभावना कम है उसको क्या उपदेश देना। वो तो ये सब बातें हैं हमारे संस्कृति ये में। बहुत अच्छा कहा आपने। पर आजकल थोड़ी उल्टी चीजें चल रही हैं। आज का प्रस्तुति भी वैसी ही थी कि हमारा प्राचीन गौरव क्या है, प्राचीन इतिहास क्या है, और हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। तो आज विशेषकर पश्चिमी जगत में और उसकी देखा देखी भारत में भी महिलाएं और पुरुषों की बराबरी करना चाहती। हाँ असल में वो देवी देवत्व में ज्यादा है। अब वो बराबरी करेगी तो हाँ, अपना ही उनका नीचे आ पतन पतन हो करेगी जाए, ना। तो अब उनका वो पतन। शराब वो पीने खुद ही में अपनी बराबरी डिमोशन करेगी, सिगरेट वो पीने खुद ही में अपनी बराबरी डिमोशन करेगी, धूम्रपान में। तो अपना अपनी हानि अपनी करेगी। अपना डिमोशन खुद ही कर रही हैं आचार्य अपना जी। डाउनग्रेड कर रही हैं हाँ, अपने आप को डाउनग्रेड अपनी इन डिमोशन खुद ही कर रही हैं। इन द नेम ऑफ एडवांसमेंट। नहीं हमारी आचार्य जी, संस्कृति जो में था। आपने अभी बोला कि और जिसका ये पतन हो मेरा सकता है, व्याकरण का विषय नहीं है, तो मैंने थोड़ा सोचा जो था। आपने अभी बोला पतन का, तो आप ये देखिए कि जब ज्ञान दिया जाता है, या तो बोले पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, तो कहने का मतलब ये सब उंगलियां पुरुष की तरफ ही उठ रही हैं। तो ये पुरुष ही ज्यादा। नहीं, अब देखिए देखिए, कविंद्र जी, एक संस्कृत साहित्य वैश्य में भी है। हाँ, आचार्य जी आएंगे। वैश्यावृत्ति तो हाँ जी। एक स्त्री ने की, और कितने सारे पुरुष उसके पास जाते हैं। हाँ हाँ, बोले तो बोले आचार्य जी। पतन शब्द से ही मुझे याद आया, पत्नी को भी पत्नी इसलिए कहते हैं कि वो पति का पतन रोकती है। हाँ, तो ये संस्कृत शब्दों के निर्वचन भी बड़े विचित्र से अच्छा, होते पत्नी हैं। का मतलब ये है कि पत्नी पतन शब्द रोक। का एक यह अर्थ भी है, इसीलिए विवाह में उसे दाहिनी तरफ बैठाते हैं, जैसे पुरुष के दाहिने हाथ का कंट्रोल उसके पास है। अरे तो पति का पतन रोकती है वो, है ना। यानी पति कर्म का पति आधिक्य, विवाह कर्म ना का पुरुष कंट्रोल। विवाह ना करे ना, तो समाज में सब उसे थोड़े शंकित होके देखते हाँ, हैं। कोई घर में नहीं बुलाना चाहता। वो विवाह है, उसके साथ आचार्य जी, एक पति पत्नी का है, अर्थ क्या है तो फिर? चलो भाई थोड़ी तो समझ है इसको। हाँ, पति का अर्थ क्या है फिर? पति का अर्थ पति का अर्थ है रक्षा करना, पालन करना, ये उसका आज्ञा दायित्व पालन, है। आज्ञा पालन। और पत्नी की आज्ञा का पालन करना। तो ये कविंद्र आपने जी, पालन कहा। मैं जो श्लोक कह रही थी कविंद्र जी, वो जी संस्कृत में आता है, मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत, है ना। तो इस तरह की जो संदेश हैं संस्कृत साहित्य में, कहीं भी स्त्री के लिए ऐसे उपदेश नहीं है नहीं है। हाँ, हमारे वाङ्मय में। सभी वही पुरुषों मैंने के आचार्य लिए जी से पर क्यों, हाँ, जो आचार्य जी कह रहे हैं ना, कि अभी हम जब बेंगलोर में थे तो सभी के यहाँ एक प्रश्न उठा, सभी नहीं पूछा कि हमारे यहाँ महिलाओं का, क्योंकि लोगों को लगता है कि
वैदिक वाङ्मय में भी महिलाओं को दोयम या कमतर रखा गया है। तो उन्होंने कहा कि ये सारे जो वेद आए ये भी ईश्वर ने पुरुषों को ही दिए, जी। है ना। 4 ऋषियों के नाम आते हैं। तो मैंने उनसे कहा आपको कैसे पता कि अग्नि पुरुष है, वायु पुरुष है, अंगिरा पुरुष है? केवल एक आदित्य है जो पुरुष नाम है, बाकी तीनों नाम महिलाओं के भी हो सकते हैं। हमें आचार्य नहीं पता कि 4 ऋषियों में से 3 महिलाएं थीं। आचार्य जी, पुरुषों को इसलिए दिए गए क्योंकि स्त्रियों को पहले से ही पता थे वो। नहीं इसलिए नहीं क्योंकि वो तो एक वो कारण ये भी लॉजिक हो नहीं सकता बनती है। है कि दिया जा गया है कि इसका प्रचार हो। पुरुष प्रचार करने में बाहर जा सकता है, इधर उधर जा सकता है, महिलाओं के लिए उतना आसान नहीं है। नहीं लेकिन वो तो 4 में से 3 तो महिलाएं भी हो सकती है ना, वो तो कोई मानसिक रूप जानता से। नहीं। और यहाँ अभी जो वेद जी ने कहा कि पति शब्द का अर्थ, तो यहाँ भी एक शब्द है जिसको लेकर थोड़े लोग संशय में पड़ जाते हैं। विवाह के समय जो कन्यादान है, जी। तो उसका कुछ लोग अब ये मजाक उड़ाने लगे हैं कि जैसे हमारी संस्कृति में कन्या भी एक वस्तु की तरह है कि जिसका दान कर दिया गया। तो दान शब्द का अर्थ मेरे सामने भी ये अभी आज सुबह मैं किसी दूसरे प्रसंग में ये आपटे का संस्कृत कोश देख रहा था। तो दान शब्द का आपटे ने एक अर्थ लिखा है हैंडिंग ओवर। ओके। एक शब्द हैंडिंग ओवर भी है। तो वो अर्थ है कि पिता अब कन्या अपनी बेटी का हाथ वो वर के हाथ में दे रहा है, जैसे कि कह रहा हो कि अभी तक इसके नेवा का, भोजन आदि की, वस्त्र आदि की व्यवस्था का दायित्व मैंने संभाला, अब से यह जिम्मेवारी तुम्हारी है। तो ये हैंडिंग ओवर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि मेरी बेटी का जीवन का निर्वाह का दायित्व अभी तक पिता ने ले लिया, अब पति को लेना है। और इसमें एक इम्प्लिसिट मीनिंग आ जाता है कि अब जब वो दोनों मिलकर परिवार बढ़ाएंगे तो पति पत्नी को दबाव नहीं डाल सकता है कि तुम कमा के लाओ, है ना। पति का ही दायित्व है परिवार का, जो बोलते हैं ना, प्रोवाइडर, भरण पोषण की, है ना। पत्नी के पास तो जो आपने कहा उपदेश में पुरुष को ही क्यों दिया उपदेश, तो पुरुष अब यहाँ भी है, जब गृह संचालन है तो पुरुष को ही कहा जा रहा है कि तुम्हें ही कमाना है। यानी अब पत्नी के पास हमेशा डिस्क्रेशन है कि वो चाहे तो घर में है, बच्चों का बाल निर्माण करे या घर संचालन में लगे, या बाहर जाके कमाना चाहे कमा ले, या घर में कोई गृह उद्योग कर ले, जो भी है। तो ये पत्नी क्या करना है उसके लिए सब कुछ डिस्क्रिशनरी होता है, क्योंकि शी इज द बेस्ट टू डिसाइड व्हाट टू डू। चलिए, बहुत अच्छा विषय था, पर ये विषय आजकल काफी तोड़ मरोड़ कर लोग इसको प्रस्तुत करते हैं, पर आज का जमाना ऐसा ही है, क्या करेंगे। अच्छी से अच्छी चीज को भी बिगाड़ देते हैं लोग। वही आज हमने संध्या में देखा, संध्या उपासना और सभी चीजों को लेकर अभी सभी शब्द अपने मूल अर्थ खो चुके हैं। तो हम थोड़ा समझना चाह रहे हैं उनको वापस लाए। और कोई प्रश्न या कुछ है तो ठीक है, नहीं तो 1.5 घंटा हो गया, हम समाप्त कर सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप सबसे अगले महीने मिलेंगे 6 मार्च को। तब अनिल जी अपनी प्रस्तुति देंगे जो इसी सम्मेलन में उन्होंने की। सबसे नमस्ते पहले मिलेंगे। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते आचार्य। सभी को नमस्ते।